हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द हार्ट ऑफ द ओनली वर्ल्ड बाय अमिताभ घोष, अ डाइंग मैन एंड एक्सपैट्रिएट फ्रॉम कश्मीर, asked the author to write something about him after he is gone. The following place is what Amitabh Ghosh wrote to keep his promise. कश्मीर से बहिष्कृत एक मरणासन व्यक्ति एक लेखक से अपनी मरणोपरांत अपने विषय में लिखने को कुछ कहता है। प्रस्तुत कृति उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है। द फर्स्ट टाइम दैट आगा शाहिद अली spoke to me about his approaching death was on 25th April 2001. The conversation began routinely. I had telephoned to remind him that we had been invited to a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick him up, although he had been under treatment for cancer for some 14 months. Shahid was still on his feet and perfectly lucid, except for occasional lapse of memory. I heard him tumbling through his engagement book, and then suddenly he said, "Oh dear, I cannot see a thing." There was a brief pause, and then he added, "I hope this does not mean that I am dying." Although Shahid and I had talked a great deal over the last many weeks, I had never before heard him touch on the subject of death. I did not know how to respond. His voice was completely at odds with the content of what he had just said, light to the point of jocularity. I mumbled something innocuous. "No, Shahid, of course not. I will be fine." He cut me short in a tone of voice that was at once quizzical and direct. He said, "When it happened, I hope you will write something about me." Routinely means regularly, नियमित रूप से, lucid means bright, स्वच्छ, brief pause means short stop, संक्षिप्त विराम, to respond means to reply, उत्तर देना, mumbled means muttered, स्पष्ट रूप से बोला, innocuous means harmless in effect, उपद्रव न करने वाला, क्यूजिकल मीन्स कॉमिकल, हंसी के योग्य। आगा शाहिद अली ने प्रथम बार अपनी निकट आती मौत के विषय में 25 अप्रैल 2001 में मुझसे बात की थी। इस चर्चा नियमित रूप से शुरू हो गई। मैंने उसे यह याद दिलाने के लिए फ़ोन किया कि हम दोनों को अपहरण के भोजन के लिए एक मित्र ने दावत पर आमंत्रित किया था तथा मैं उसे लेने के लिए अपनी गाड़ी से उसके अपार्टमेंट आ रहा हूँ। यद्यपि लगभग 14 महीने से उसके कैंसर का इलाज चल रहा था। शाहिद अपने पैरों के बल खड़ा था। आकाश में कभी कभी स्मृति खोने के सिवाय मैंने उसे अंगूठे से पुस्तकों के पृष्ठ को उलटते हुए सुना था। फिर उसने अकस्मात कहा, "अरे प्रिय, मैं भी कुछ नहीं देख सकता।" एक संक्षिप्त रुकावट थी और फिर उसने कहा, "मैं अपेक्षा करता हूँ कि इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी मृत्यु होने जा रही है।" लेकिन शाहिद और मैं कई सप्ताहों से बात कर रहे थे, पर मैंने उसे कभी भी मौत की चर्चा करते हुए नहीं सुना था। मैं नहीं जानता था कि मैं उसका जवाब दूँ। जो कुछ भी मुझसे कहा गया था उस समय के मुताबिक उसकी आवाज़ मजाक की हद तक बिल्कुल विषम लग रही थी। उसने मेरी बात को बीच में काटते हुए बोला, "तुम अच्छे हो जाओगे।" एक ऐसी आवाज़ जो बिल्कुल प्रत्यक्ष मजाक थी। उसने कहा, "जब ऐसा होता है तो मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरे विषय में कुछ लिखोगे।" I was shocked into silence and a long moment passed before I could bring myself to say the things that people say on such occasions. "Shahid, you will be fine. You have to be strong." From the window of my study, I could see a corner of the building in which he lived some 8 blocks away. It was just a few months since he moved there. He had been lying a few miles away in
Manhattan when he had a sudden blackout in February 2000 after tests revealed that he had a malignant brain tumor. He decided to move to Brookline to be close to his youngest sister Samita, who teaches at the Pratt Institute a few blocks away from the street where I live. Shahid ignored my resourcefulness. He began to laugh, and it was then that I realized that he was dead serious. I understood that he was interesting me with a quite specific charge. He wanted me to remember him not through the spoken recitatives of memory and friendship, but through the written word. Shahid knew all too well that for those writers for whom things become real only in the process of writing, here is an inbuilt resistance to dealing with loss and bereavement. He knew that my instinct would have led me to search for reasons to avoid writing about his death. I would have told myself that I was not a poet, that our friendship was of recent date, that there were many others who knew him much better and would be writing from greater understanding and knowledge. All this Shahid had guessed, and he had decided to shut off those roots while there was still time. Malignant means harmful to life, Pakti resourcelessness means hopes, आश्वासन, interested means given interest, विश्वास से सौंपना, bereavement means deprivation of a relative by death, विद्रोह, understanding means wisdom, समझ। मैं अचंभित होकर शांत हो गया और इससे पूर्व कि मैं खुद वह सब कुछ बोलने को तैयार करता जो लोग अक्सर ऐसे अवसरों पर बोलते हैं। एक लंबा समय बीत गया। शायद तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें ताकतवर होना चाहिए। मैं अपनी अध्ययन कक्ष की खिड़की से मैं घर का कोना देख सकता था जिसमें वह रहता था। कोई 8 ब्लॉक दूर स्थित यह यहाँ कुछ महीने पहले यहाँ आया था। वह कुछ ही मील दूर रह रहा था। मैनहट्टन में जब फरवरी 2000 में अकस्मात उसका दिमाग बिगड़ गया। जांचों के बाद पता लगा कि उसके दिमाग में ट्यूमर था। उसने अपनी छोटी बहन समीक्षा के बाद पास ब्रुकलिन में ब्रैट इंस्टीट्यूट में अध्यापन करती थी में जाने का निर्णय लिया और वहीं से कुछ ब्लॉक की दूरी में रहता था। शाहिद ने मेरे दिए गए आश्वासनों की उपेक्षा की। वह हंसने लगा और तभी मैंने एहसास किया कि वह बहुत गंभीर था। मैं समझ गया था कि वह मुझे एक विशेष जवाबदारी का काम सौंप रहा था तथा वह चाहता था कि मैं उसे अपने मध्य हुई चर्चाओं व क्रियाकलापों के रूप में स्मरण करूं, परंतु लिखित शब्दों के माध्यम से स्मरण रखूं। शायद सब कुछ जानता था कि वे लेखक जिनके लिए हकीकत मात्र लिखित रूप में ही बनती है और पीड़ा व हानि से टकराने के लिए आंतरिक प्रतिरोधकता प्रदान करती है। उसे पता था कि मेरी मनोवृत्तियाँ उसके मारने के विषय में लिखने से बचाने के लिए तक ढूंढने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं स्वयं को यह समझाता कि मैं एक कवि नहीं था। हमारी मित्रता अभी हुई थी, अथवा मेरी तरह और भी बहुत लोग जो उसे बेहतर जानते हों वे इसे काफ़ी समझ व ज्ञान से लिखेंगे। शायद इन सभी बातों का अंदाज़ा लगा चुका था और वह समय रहते इन सभी रास्तों को बंद कर देना चाहता था। यू मस्ट राइट अबाउट मी क्लियर थ्रू इट वॉज दैट दिस imperative would have to be acknowledged. I could think of something to say. What are that word in which are one promise a friend that one will write about him after his death. Finally I said, Shahid, I shall do that best I can. By the end of the conversation I knew exactly what I had to do. I picked up my pen, noted the date and wrote down everything I remembered of that
conversation. This I continue to do for the next few months. It is this record that has made not possible for me to fulfill the pledge I made that day. Acknowledge means familiar जानकारी हुई. Conversation means discussion वार्तालाप. Plead means promise by the. तुम मेरे विषय में अवश्य लिखोगे. यदि यह स्पष्ट था कि मुझे इसकी जानकारी में रखना था तो मैं कुछ कहने की सोच नहीं सकता था. ऐसे कौन से शख्स हैं जिन्हें कोई वायदा करके अपना कोई मित्र के विषय में उसके मरणोपरांत लिखेगा. आखिर मैंने कहा शायद मैं लिखूंगा. मैं भरसक प्रयास करूंगा जितना कर सकता हूं. चर्चा की समाप्ति के बाद मैं यह जानता था कि मुझे क्या करना था. मैंने अपनी कलम उठाई, दिनांक नोट किया और इस चर्चा के विषय में जो वर्णन याद रहा उसे लिखा. यह काम मैं अगले कुछ महीनों तक लगातार करना जारी रखा. यह वही लिखित ब्यौरा है जिसके आधार पर मैं उससे किए गए वायदों को पूरा करने में कामयाब हो गया. आई न्यू शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम. हिज 1997 collection The Country Without a Post Office had made a powerful impression on me. His voice was like none I had ever heard before. At once lyrical and fiercely disciplined, engaged and yet deeply involved. Not for him the mock casual almost prose of so much contemporary poetry. His was a voice that was not ashamed to speak in a bardic register. I knew of no one else who would even conceive of publishing a line like Mad Heart Be Brave. Mock casual means to make a fun sudden. आकस्मिक मजाक. Contemporary means ancient समकालीन. Bardic register means a poetic style. काव्यात्मक शैली. उसके मिलने से काफ़ी समय पूर्व ही मैं साहित्य के काम के विषय में जानता था. उसके द्वारा 1997 में किया गया संकलन द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, बिना डाक खाने का गांव, ने मुझ पर गहरा प्रभाव छोड़ा. मैंने उसकी भांति आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी. गीतात्मकता के साथ साथ पूर्णतः अनुशासित, व्यस्त और साथ ही गहन अंतर्मुखी. उसकी समकालीन काव्य के समय ऐसा काव्यात्मक पद नहीं था. उसकी आवाज़ ऐसी थी कि मैं इसे पुरानी काव्य शैली में बोलने से शर्म महसूस नहीं करता. मुझे अन्य काव्यों के बारे में जानकारी नहीं थी जो मैड हार्ट बी ब्रेव जैसी पंक्ति को प्रकाशित करने का विचार भी बनाता. In 1998, I quoted a line from The Country Without a Post Office in an article that touched briefly on Kashmir. At the time, all I knew about Shahid was that he was from Srinagar and had studied in Delhi. I had been at Delhi. University myself, but although our time there had briefly overlapped, we had never met. We had friends in common, however, and one of them put me in touch with Shahid. In 1998 and 1999, we had several conversations on the phone and even met a couple of times, but we were no more than acquaintances until he moved to Brookline the next year. Once we were in the same neighborhood, we began to meet for occasional meals and quickly discovered that we had a great deal in common. By this time, of course, Shahid's condition was already serious, yet his illness did not impede the progress of our friendship. We found that we had a huge roster of common friends in India, America, and elsewhere. We discovered a shared love of Oregon, Josh, Rosanara Begum, and Kishore Kumar, a mutual indifference to cricket and an equal attachment to old Bombay films. Because of Shahid's condition, even the most trivial exchange had a special large and urgency. The inaccessible poignance of talking about food and half-forgotten figures from the past with
A man who knew himself to be dying was multiplied in this instance by the knowledge that this man was also a poet who had achieved greatness, perhaps the only such that I shall never ever know as a friend. Overlaid means to lap over, एक दूसरे के साथ होना. Acquaintance means familiarization, परिचय. Occasional means timely, सामयिक. Indifference means unity, एकता. Inescapable means which cannot be escaped, ना बचने योग्य. Poignance means the state of being acute, तीखापन. मैंने सन 1998 में द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस की एक पंक्ति अपने लेख में लिखी जो कश्मीर की समस्या पर आधारित थी. उस समय मैं साहित्य के विषय में मात्र इतना ही जानता था कि वह श्रीनगर का रहने वाला था और उसने दिल्ली में पढ़ाई की थी. मैं स्वयं दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ा था, परंतु वहाँ पर हमारा समय एक दूसरे के साथ बहुत कम बीता. हम कभी नहीं मिले. फिर भी हमारे सारे मित्र वहीं थे और उन्हीं में से एक ने मुझे साहित्य से मिलवाया. सन 1998 और 1999 में हमने फ़ोन पर काफ़ी बात की और यहाँ तक कि वह अगले वर्ष ब्रुकलिन नहीं जा पाया. एक बार तो हम लोग एक ही पड़ोस में रहने लगे. कभी कभार अवसरों पर खाने में मिलने लगे और तभी यह पता चला कि हम दोनों में किसी चीज़ की तो एक रूपता थी. समय बीतने के साथ साथ साहित्य की स्थिति निश्चित तौर पर गंभीर हो चुकी थी. फिर भी उसकी बीमारी मित्रता के विकास में बाधा न बनी. हमने यह भी देखा कि हमारे मित्रों की सूची एक जैसी थी, चाहे वे भारत व अमेरिका में थे और कहीं. हमने यह भी देखा कि हमारे मित्र की सूची हमने यह भी देखा कि हम दोनों की पसंद भी एक जैसी थी. रोगन जोश, रोशनारा बेगम व किशोर कुमार हम दोनों को प्यारे थे तथा हम दोनों ही क्रिकेट को नहीं पसंद करते थे तथा हम दोनों को बॉम्बे की पुरानी फिल्मों के बहुत लगाव था. साहित्य की नाजुक स्थिति के कारण छोटी छोटी बातों के आदान प्रदान का विशेष महत्व तथा जरूरत थी. सामान्य भोजन तथा आदि अधूरी विस्मृति बातों के विषय में उस व्यक्ति का ख्याल जो अपनी मौत के विषय में जानता है उस वस्तु की सुंदरता को कई गुना कर देता. यह विचार कर कि संभवतः यह वह व्यक्ति एक महान कवि था, संभवतः ऐसा जिसे मैं अपने मित्र के रूप में आजीवन स्मरण कर सकूं. वन आफ्टरनून द राइटर सुकेतु मेहता, who also lives in Brookline, joined us for lunch. Together we hatched a plan for an Ada. By definition, a gathering that has no agenda other than conviviality. Sahid was enthusiastic and we began to meet regularly. From time to time, other writers would join us. On one occasion, a crew arrived with a television camera. Sahid was not in the least bit put out. I am so shameless, I just loved the camera. Sahid had a sorcerer's ability to transmute the mundane into the magical ones. I accompanied Iqbal, his brother, and Hannah, his sister, on a trip to fetch him home from hospital. In this was on 21st May. By that time he had already been through several unsuccessful operations. Now he was back in hospital to undergo a surgical procedure that was intended to relieve the pressure on his brain. His head was shaved and the shape of the tumor was visible upon his bare skull. It's easily outlined by metal shutters. When it was time to leave, the ward a blue-uniformed hospital escort arrived with a wheelchair. Sahid waved him away, declaring that he was strong enough to walk out the
of the hospital on his own, but he was groggier than he had thought, and his knees bulked. After no more than a few steps, Iqbal went running off to bring back the wheelchair, while the rest of us stood in a corridor, holding him upright at that moment, leaning against the cheerless hospital wall. A kind of rapture descended on Sahid. When the hospital orderly returned with the wheelchair, Sahid gave him a beaming smile and asked where he was from. Ecuador, the man said, and Sahid clapped his hands gleefully together. Spanish, he cried at the top of his voice. I always wanted to learn Spanish just to read Lorca. Haymi developed बनाया conviviality means joviality, प्रफुल्लता, ट्रांसम्यूट मीन्स टू चेंज इनटू अनदर फॉर्म, बदलकर दूसरा आकार ग्रहण करना, मंडेल्स मीन्स वर्ल्डली सांसारिक, सेटर्स मीन्स ए स्कैम ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कुल, टाँका खोपड़ी की हड्डी का जोड़, ग्रोगियर मीन्स टू ड्रिंक ड्रग शराब पीने वाला, बकल्ड मीन्स टू बैंड झुकना, रैप्चर मीन्स एक्सट्रीम डिलाइट अत्यंत हास, लॉर्का मीन्स ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ स्पेन, स्पेन का कवि व नाटककार। एक दोपहर लेखक सुकेतु मेहता को जो ब्रुकलिन में रहते थे हमारे साथ दोपहर के खाने में सम्मिलित हुए। हम सब ने मिलकर एक ऐसे अड्डे के विषय में योजना बनाई पर व्यवस्था आनंददायक कामों के अलावा अन्य कोई काम नहीं होता था। शायद उत्साही था तथा हम लोगों ने रोजाना मिलना शुरू कर दिया। समय समय से अन्य लेखक भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाया करते थे। एक अवसर पर एक पूरी की पूरी मंडली कैमरे के साथ आ गई। शाहिद बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और बोला, मैं बहुत बेशर्म हूँ, मैं कैमरे से प्यार करता हूँ। शाहिद में एक जादूगर की भांति योग्यता थी जो सामान्य व संसारिक चीज़ों को जादुई रूप में परिवर्तित कर देता था। एक बार मैं उसका भाई इकबाल और उसकी बहन हिना उसको अस्पताल से घर पर लाने के लिए अस्पताल गए। यह 21 मई की तारीख थी। अब तक उसके कई असफल ऑपरेशन हो चुके थे। अब उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती किया जाए ताकि उसके दिमाग पर तनाव को कम करने के लिए ऑपरेशन किया जाए। उसके सिर को मुड़ा दिया जाए जिससे उसके खुले मस्तक पर ट्यूमर धातु के रंगों की तरह स्पष्ट दिखाई देता था। वह वार्ड से बाहर आने का समय आया तो नीली वर्दी पहने अस्पताल का अनुचर व्हील चेयर लेकर आया। शाहिद ने उन्हें यह बताते हुए अपना वापस भेज दिया कि अभी इतना स्वस्थ है कि वह पैदल चल कर जा सकता था, परंतु वह इस समय अधिक नशे में था। उसका घुटना कुछ दमन कारक मुड़ गया। इकबाल व्हील चेयर को वापस लाने के लिए दौड़ा और हम सभी उसे सीधा पकड़े कॉरिडोर दहलीज में खड़े रहे। उस क्षण अस्पताल की दीवार के सहारे झुके हुए उदास शाहिद पर एक विचित्र हंसी आई। जब अस्पताल की अनुमति पर व्हील चेयर वापस आई तो शाहिद ने मुस्कुराते हुए पूछा कि वह वहाँ से ताल्लुक़ रखता। अस्पताल के कर्मचारी ने कहा, एक्वाडोर नामक व्यक्ति व शाहिद ने अपने दोनों हाथों से खुशी से ताली बजाते हुए कहा, स्पेन वाली, और वह जोर से चिल्लाया। मैं हमेशा से स्पेनिश भाषा सीखना चाहता था जिससे लोरको को पढ़ सकूं। शाहिद gregariousness had no limit. There was never an evening when there was not a party in his living room. I love it that so many people are here. He told me once. I love it that people come and there's always food. I love this spirit of festivity. It means that I do not have time to be depressed. His apartment was a spacious and airy split level on the 7th floor of a newly renovated building. There was a cavernous study on the top floor that a wild terrace Taj provided a magnificent view of the
Manhattan skyline across the East River. Shahid loved this view of the Brookline waterfront slipping like a ghat into the East River under the glittering light of Manhattan. Gregariousness means the quality of being gregarious. समुदाय में रहने का गुण. Festivity means rejoicing, उत्सव काल. Depressed means पजल, परेशान. साहित्य की उदारता की कोई सीमा नहीं थी. कोई ऐसी शाम नहीं थी जब उसके कमरे में कोई पार्टी आयोजित नहीं होती हो. मुझे इस चीज़ से प्यार है कि लोग यहाँ रहें. एक बार वह मुझसे बोला, मुझे यह बहुत पसंद है कि लोग आएं और हमेशा खाना पीना होता रहे. मुझे इस प्रकार के उत्सव की भावना से प्यार है. इसका यह मतलब है कि मेरे पास निराश होने के लिए समय नहीं है. उसका अपार्टमेंट घेरदार व हवादार था, जो एक दोबारा से बनाई इमारत की 7वीं मंजिल थी, जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर एक छत की तरह का अध्ययन कक्ष तथा एक बड़ी छत थी जो मैनहट्टन की पूर्व दिशा में नदी के उस पार आसमान की रेखा जैसा आकर्षक दृश्य दिखाई देता था. शाहिद इस ब्रुकलिन के सामने से पानी के फिसलते दृश्य को बेहद पसंद करता था, जो एक घाट की तरह दिखता था. पूर्व नदी में मैनहट्टन के चमकते प्रकाश के नीचे. द जर्नी फ्रॉम द फोयर ऑफ शाहिद बिल्डिंग टू हिज डोर वाज ए वॉयेज बिटवीन continent. On the way up, the rich fragrance of Rogan, Josh and Hawk would invade the door or grey interior of the elevator against the background of the song and voices that were always echoing out of his apartment. Even the ringing of the doorbell had an oddly musical sound. Suddenly Shahid would appear flinging open the door, releasing a great cloud of heat into the frosty New York air. Oh, how nice, he would cry, clapping his hands. How nice that you have come to see your little mouse lamb. Invariably there would be some half dozen or more people gathered inside, poets, students, writers, relatives, and in the kitchen someone would always be cooking or making tea, almost to the very end, even as his life was being consumed by his disease. He was the center of a perpetual carnival, an endless mela of talk, laughter, food, and of course poetry. Elevator means tending to rise, ऊपर उठने वाला. Perpetual means everlasting, सनातन. Carnival means extreme delight, अत्यंत हर्ष. शाहिद के मकान की लॉबी बैठक कक्ष से लेकर उसके दरवाजे तक की यात्रा, जो महाद्वीपों के मध्य थी. सबसे पहले रोगन जोश हॉक की मंद खुशबू, लिफ्ट के अंदर से धुन व संगीत की आवाज़ सीधे उसके घर से बाहर भी गूंजती रहती थी. यहाँ तक कि उसके दरवाजे वाली घंटी की आवाज़ भी संगीत की भांति लगती थी. शाहिद ने अकस्मात दरवाज़ा खोलते हुए आता था. न्यूयॉर्क की बर्फीली हवाओं में हिम के विशाल बादल से निकला हुआ आता. अरे कितना अच्छा लगा कि तुम आ गए. वह अकस्मात तालियां बजाता हुआ कहता कि कितना अच्छा हुआ कि आप इतने छोटे व्यक्ति से मुलाकात करने आए हैं. और प्रतिदिन ही वहाँ आधे दर्जन के आसपास लोग होते थे. कभी विद्यार्थी, लेखक, रिश्तेदार, और रसोई में कोई न कोई भोजन या तो चाय बना रहा होता. लगभग बाद तक फिर भी बीमारी से उसका जीवन बर्बाद हो रहा था. वह सनातन आनंद का केंद्र बिंदु था. बातचीत, हंसी, भोजन सचमुच में काव्य का अंत मिला था. No matter how many people there were, Shahid was never so distracted as to lose track of the progress of the evening's meal. From time to time he would interrupt himself of shout direction to whoever was in the kitchen. Yes,
Now at the he now, even when his eyesight was failing, he could tell from the smell alone exactly which stage the Rangan Josh had reached, and when things went exactly as they should, he would sniff the air and cry out loud, "आह! खाना का क्या महक है!" Sahid was legendary for his prowess in the kitchen, frequently spending days over the planning and preparation of a dinner party. It was through one such party given while he was in Arizona that he met James Merrill, the poet, who was too radically after the direction of his poetry. It was after his encounter that he began to experiment with strict metrical patterns and verse forms. No one had a greater influence on Sahid's poetry than James Merrill. Indeed, in the poem in which he most explicitly prefigured his own death, "I dream I am at the heart of the only world," he averred the envy to Merrill. "Sahid, this is me, James, the loved one always lives." Legendary means fabulous, पौराणिक. प्रोवेस मीन्स वैल्योर, पराक्रम, वीरता. रेडिकली मीन्स ओरिजिनली, मौलिक रूप से. मैट्रिकल मीन्स इन्वॉल्विंग पोएटिक मेजर, छंदोबद्ध. इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वहाँ कितने लोग थे, साहिद स्वयं सायं भोजन की तैयारी को छोड़कर इतना बेचैन कभी नहीं होता था. समय समय पर वह स्वयं ऊंची आवाज़ में रसोइये से कहता, "हाँ, अब दही मिलाओ." वह मात्र खुशबू से ही बता देता था रोगन जोश किस दशा को पहुंचा होगा, और अब सभी कार्य वैसे ही होते जैसे वह चाहता था. वह हवा को सूंघता तथा तेज आवाज़ में बोलता, "आहा, खाने की क्या महक है!" साहिद एक कुशल रसोई के रूप में विख्यात था, और बड़े रात्रि भोजन की योजना बनाने में वह दोबारा तैयार करने में कई दिन व्यतीत कर देता था. वह एरिज़ोना में इस प्रकार की पार्टी में शामिल था. उसकी मुलाकात जेम्स मैरेल से हुई थी, जो ऐसा कवि था जिसने एकदम से अपनी कविता की दिशा बदल दी थी, और इस मुलाकात के विषय में वह सख्त मैट्रिकल शैलियों तथा काव्य रूपों का प्रयोग करने लगा था. जेम्स मैरेल के अलावा और किसी का प्रभाव साहिद की कविताओं में नहीं दिखाई देता. वास्तव में उसे जिस कविता में अपनी मृत्यु का पूर्ण रूप से पूर्वाभास हो जाता है, "आई ड्रीम आई एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड" में उसने अपने मेरिल के सम्मान के रूप में पूर्ण उपसंहार लिखवाया. "साहिद, चुप हो जाओ, मैं हूँ जेम्स" जैसे उसके प्रियजन हमेशा साथ छोड़ देते थे. थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक. बच्चों ध्यान से सुनना, ये ऑडियो है, आप लोग आराम से रिलैक्स होकर सब कुछ समझ में आएगा.